वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में बताते हैं क्या है खास, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के टेस्ट ड्राइव हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट सेट रेडी टू गो। देखते हैं क्या है हेडलाइंस। ले चलेंगे मर्सिडीज की अपकमिंग इलेक्ट्रिक लग्जरी कार EQS की टेस्ट ड्राइव पर। ऑडी की लग्जरी सेडान A8L हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। करेंगे कुछ खास बातचीत ऑडी इंडिया हेड बलबीर सिंह ढिल्लों से। 2022 Hyundai Tucson हुई भारतीय बाजार में अनवील, जल्द होगी लॉन्च। BMW G310 RR ने लिए भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जिग्नेशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम यहाँ जर्मन कार मेकर, द बिगेस्ट लग्जरी कार कंपनी इन इंडिया, मर्सिडीज बेंज के हेडक्वार्टर्स इन स्टुटगार्ट। वेल, वी हैव अ वेरी नाइस लुकिंग कार जिसको आप अभी थोड़ा सा देख सकते हैं। एंड व्हेन आई टेल यू व्हाट कार दिस इज, यू विल अप्रिशिएट दैट हम आपके लिए इसकी फर्स्ट ड्राइव लेकर आ रहे हैं अहेड ऑफ इट्स लॉन्च। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल न्यू इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, द EQS, जिसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया था लास्ट ईयर। अब ये इंडिया आ रही है। Well, EQS एक स्पेशल कार है for Mercedes Benz for many reasons. Of course, to start with, ये all electric गाड़ी है, first one that Mercedes Benz is making on the modular architecture, absolutely new platform जिस पर अब उनकी आगे चलकर बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी. That's the all electric version. What's very important and what stands out for this car is the fact that इसकी range बहुत अच्छी है. This is, of course, we're talking of 750 kilometers kind of run on a single charge, and that of course is something जो consumers appreciate करेंगे because range anxiety अभी तक एक बड़ा factor था, but Mercedes has worked on it, made sure that they got the range right. Of course, this is the super luxury segment that one is talking about, और उस पर ये गाड़ी launch हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं. Well, range की बात हुई, power performance में भी there's absolutely no compromise, I would say. ज़बरदस्त एक्शन है when it comes to performance while it's electric, but the acceleration, the way it drives, the way it handles feels very much in place. When you talk of the exterior and the interior, of course design technology पर बहुत focus है with connectivity and futuristic approach is what the thought process has been for Mercedes-Benz when they were making this car. खास बात ये है कि आप इसको देखिए, बहुत seamless है, which is very clean, neat, one kind of feel to the whole car design language. Talking about exterior, I think you can see it's obviously much longer than the S-Class, and बहुत सारे लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि S-Class और EQS में अब क्या फ़र्क है. तो मैं ये बता दूँ, the positioning of this car is going to be under S-Class in the sense that S-Class still remains the pinnacle of luxury जो कंपनी के तरफ से एक positioning की बात की जाए, और ये एक, while it's very similar, yet it's very different. That's the beauty of the way this car is going to be positioned by Mercedes-Benz. Pricing, of course, is something which is going to be critical. जिसका मतलब ये है, कंपनी ने कोशिश करी है कि इसको एक effective price पर ही launch करें. It's not a CBU, so that's a good thing, which means इसकी price competitiveness रहेगी. You can expect it around less than 2 crores. That's the sense we get it at this point in time. S-Class is purely luxury, chauffeur-driven, comfort-oriented car. This car exudes more of technology, future, artificial intelligence, and of course the fact that electric is the way forward. जो इस गाड़ी के साथ company is absolutely bang on trying to communicate to the world कि उनका अब आगे electric vehicle fleet में आप इसी तरीके की design language and इसी तरीके की technology देखेंगे. Well, boot बहुत ही important area to see and check the space that you get. Well,
quite a lot of it, as you can see. 610 लीटर बूट स्पेस दिया गया है, एंड अगर हम पीछे वाली सीट्स नीचे गिरा देते हैं तो ऑलमोस्ट 1700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, which is very very nice. All right, now time to look at the car from the inside. Well, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले what you notice is this big wide screen. In fact, this is the first Mercedes-Benz vehicle जहाँ पर आप पूरे डैशबोर्ड पे स्क्रीन देखते हैं. एक्चुअली ये स्क्रीन है amalgamation of 3 different screens. This is a 12.3 inches, so is this 12.3 inches. और जो सेंटर में स्क्रीन है, which is a center console screen, this, of course, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा attractive feature है. Hyper screen का जो philosophy है that Mercedes-Benz is bringing through this car. And मैं आपको ये बताऊँ that this screen is about 17.7 inches. So the way the design language has been done, again ये दिखा रहा है यही futuristic design language कंपनी यूज़ करेगी. इनफैक्ट ये कंफर्म भी किया है कि आगे EQ रेंज ऑफ व्हीकल्स में आप इसी तरीके की स्क्रीन्स भी देखेंगे. नाउ हाइपर स्क्रीन, एज यू नो, इस ये पूरा का पूरा 56 इंचेस इसकी विड्थ है. मिनिमल यूज़ ऑफ बटन्स. यू सी इट्स ज़ीरो लेयर फिलॉसफी. अगेन एक और टर्मिनोलॉजी जो कंपनी ने यूज़ की है वो है ज़ीरो लेयर, विच मीन्स आपको कहीं पे भी जाना है, सो यू डोंट हैव टू गो इन सब मेन्यूज़. स्ट्रेट अवे आपके पास जहाँ जाना है उसके लिए डायरेक्ट कमांड है, एंड यू कैन जस्ट गो इन. पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन लैंग्वेज है. एग्जैक्टली वॉट यू नीड, नो क्लटरिंग. सेम विद हेड्स अप डिस्प्ले. यू कैन ऑफ कोर्स चेंज व्हाट यू वांट, बट द स्पीड एंड अदर मार्किंग्स आर देयर, तो आपको कभी भी नज़र रोड से हटाने की ज़रूरत ही नहीं है. अगेन एड्स टू द सेफ्टी फीचर ऑफ थिंग्स. एक और बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ बहुत अच्छी यूजेज की है, विच आई पर्टिकुलरली लाइक. स्मॉल थिंग्स आप देखिए, अगेन वेरी वेरी सीमलेस क्लीन वे ऑफ होल्डिंग अप थिंग्स. यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं. देयर इज अ वायरलेस चार्ज, टाइप सी USB पोर्ट्स दिए हैं. लॉट्स ऑफ स्टफ दैट यू कैन पुट इन एंड क्लोज इट. साथ ही साथ हियर यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर यू टू पुट योर स्टफ इन. एंड EQS जो गाड़ी है वो कंपनी की तरफ से अब एक न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज बताती है, न्यू फिलॉसफी बताती है टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रल. एंड आई थिंक ये पहली गाड़ी है जो कंपनी लॉन्च करके ये प्रूव कर रही है दैट दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर Mercedes-Benz ऑल ओवर द वर्ल्ड. The first impression is that obviously it's pretty comfortable. These headrests भी बहुत comfortable फील कर रहे हैं. एंड अगर आप देखें तो फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी you have the right USB modes. You can charge your phones, you can adjust your temperature and make yourself comfortable at the back seat. Overall, I think there's enough space for 2 people to comfortably sit and relax. well, हम यहाँ स्टुटगार्ट में ऑल न्यू EQS फ्रॉम Mercedes-Benz. ये गाड़ी जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन है, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम Mercedes-Benz, built on a new modular platform.
ये फाइनली भारत में आ रही है। और हम आपको बता दें ये अगस्त लास्ट ईयर इसका ग्लोबल लॉन्च हो चुका है इन सम मार्केट्स, बट इंडिया इज़ गेटिंग ऑलमोस्ट 1 साल बाद इसके ग्लोबल लॉन्च के बाद। एंड सो फार द रिव्यूज़ हैव बीन प्रिटी फिनोमिनल जहाँ जहाँ इसकी बिक्री हुई है। एंड मर्सिडीज़ बेंज का कहना है कि दे आर वेरी हैप्पी with the reception of this product globally. बात करते हैं इंडिया की। वेल इंडिया में हमने देखा ये गाड़ी अवेलेबल होगी अराउंड स्टार्ट ऑफ द फेस्टिव सीजन। सो इन अ फ्यू मंथ्स ये भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो जाएगी। और इसकी प्राइसिंग और पोजिशनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंस इट्स एन ऑल न्यू फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम मर्सिडीज़ बेंज, ख़ास बात यह है कि इसको पोजिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एस क्लास से अलग रखा जाएगा। एस क्लास इज़ ऑफ कोर्स द पिनिकल ऑफ लग्जरी, बट दिस इज़ लग्जरी विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट्स राइट, टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज़ वेरी डियर टू पीपल नाउ। लोग फीचर्स चाहते हैं, अपग्रेडेड वर्जन्स चाहते हैं। व्हेन यू सी दिस कार यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी का बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड किया गया है। डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी, कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, इन चारों को ब्लेंड कर कर EQS बनाई गई है। वेल ख़ास बात यह है कि ये मर्सिडीज़ बेंज की जो एक विजन है टुवर्ड्स ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें पहली गाड़ी है विद अ ब्रिलियंट रेंज। हम जानते हैं कि इसकी रेंज जो कंपनी का दावा है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, ऑन दिस कार यू गेट अ मैसिव रेंज ऑफ ओवर 750 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड दैट माइंड यू इज़ अ बिग वन, क्योंकि लोग ज़्यादातर अभी रेंज एंग्जाइटी की बात करते हैं, बट इस गाड़ी में रेंज का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। एंड यू गेट really a decent amount of range on a single charge, which basically is pretty functional and appreciated by many. Engine power performance हम देखें, battery of course है, as you know this is a all electric vehicle, so 107 kilowatt का यहाँ पर बैटरी है और उसमें आपको पावर की कोई कमी नहीं है। फ्रैंकली इफ़ यू सी द वे दिस फंक्शन 0 to 100 जस्ट अबाउट 4.1 सेकेंड्स में ये अटेन कर लेती है। मैसिव परफॉर्मेंस है। वेल फॉर इंडियन मार्केट ये गाड़ी काफ़ी डिज़ायरेबल हो सकती है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला, आपको जो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज मिल रही है दैट्स प्रिटी डिसेंट एंड कमेंडेबल। दूसरा, इस गाड़ी को चाकन फैक्ट्री में बनाया जाएगा, इन मेनी वेज विल बी असेंबल्ड हियर एंड दैट विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट क्वाइट सिग्निफिकेंटली फॉर दिस कार। बट जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ी में दिलचस्पी है, विद अ लॉट ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी, a bit of artificial intelligence that has been integrated into it, बेसिकली ये दिखा रहा है कि मर्सिडीज़ बेंज का अब फ्यूचर किस तरफ है। दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस कार एंड देव गॉट गुड रिजल्ट्स एंड आई थिंक अब जो EQ रेंज के और भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें भी हम काफ़ी ऑगमेंटेशन देखेंगे ऑफ टेक्नोलॉजी विद लग्जरी। वेल EQS में ऑलमोस्ट 350 सेंसर्स लगे हैं एंड इट एक्चुअली बेसिकली इज़ मॉनिटरिंग एवरी मूव दैट यू आर मेकिंग। बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर्स हैं विच बेसिकली हेल्प्स और एड्स इन सेफ्टी, इन कंफर्ट, इन फंक्शनैलिटी ऑफ ड्राइविंग। All right, so Mercedes-Benz की EQ journey in India will start with this car and मैं आपको बता दूं that after EQS कंपनी ने प्लान किया है EQB लाना, which is of course more of a family car. It's a 7-seater that will be brought as a CBU, but उसके बाद हम EQE भी देखेंगे at some point. But you know it's the new range of products, the all electric products from Mercedes-Benz जो अब कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली लॉन्च करेगी, नॉट जस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इंडिया बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर मर्सिडीज़, ऑल्दो स्मॉल बट वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एंड ये गाड़ी भी उसमें पहली एंट्री ले रही है। एंड आई थिंक ओवरऑल एज अ पैकेज फॉर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर अ नाइस लग्जरी कार इन कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक स्पेस जो अभी हमें नहीं मिलती है, with the kind of range that we are talking about, I think it's a great first step in that direction. ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए चलते हैं, अब डालते हैं नजर इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑल राइट, ऑडी इंडिया ने भारतीय बाजार में 15 साल पूरे किए इस साल, और इस साल एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट दी अपडेटेड A8L यानी कि लॉन्ग व्हील बेस्ड वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। दिस वाज मच अवेटेड, ऑफ कोर्स A8L इज़ राइट हियर, एंड ये गाड़ी अब पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द कंपनी सेज। आज हम इसका फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं। इट्स नॉट फॉर ड्राइव अवेलेबल फॉर ड्राइव येट, बट लेट्स सी गाड़ी में क्या कुछ बदला है। ऑल राइट, अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स, व्हाट्स चेंज्ड इन दिस, ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, विच मीन्स ये 5 इंचेस ज़्यादा लंबी है देन द नॉर्मल A8। Of course, long wheelbase version means more comfort, but let's look at the grille, and that's really what is changed and stands out. यहाँ पर आप देखिए, ये 3D feel देते हैं these chrome studs that now the car gets, and the grille has been changed. This is a single grille जिसको अब ज़्यादा wider and bolder किया, and that's something you notice immediately when you look at the car from the way it looks more promising, more elegant than before. और राइट, आप कार को इंटीरियर से देखते हैं, और सबसे पहले मैं ड्राइवर सीट पर आना चाहती हूँ। दो ऑफ कोर्स यू विल से दैट ये गाड़ी मोर फॉर शॉफर ड्रिवन, मोर फॉर कंफर्ट, इसकी रियल टेस्ट तो पीछे से है, बट हम वहाँ पर जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आगे क्या बदला है और आगे क्या अच्छा है। पहले तो आप देखिए, दिस इज़ द 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो अब यहाँ पर आपको दिखता है, एंड ऑफ कोर्स द सेंटर कंसोल लुक्स प्रीटी नाइस एंड क्लीन। इसके अलावा देयर इज़ एन 8.6 इंचेस यहाँ पर कर्व्ड डिस्प्ले है, विच इज़ ऑल डिजिटल डिस्प्ले, द ड्राइवर्स डिस्प्ले दैट यू सी। वेल, ऑडी इज़ ऑलरेडी नोन अपनी इल्यूमिनेशन एंड लाइटिंग टेक्नोलॉजी, बट उसको और भी पहले से बेहतर किया है। इस बार आपको इसमें डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स मिलती हैं, विच मीन्स दैट दिस इज़ मच मोर प्रॉमिसिंग व्हेन इट कम्स टू इल्यूमिनेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स एक्चुअली यहाँ पर हैं, जिससे आपको इल्यूमिनेशन वर्ल्ड क्लास मिलता है। ऑल राइट, ऑडी इंडिया ने फाइनली अपने 15 साल पूरे करने के सेलिब्रेशन में इस साल बहुत ही स्पेशल गाड़ी, द फ्लैगशिप A8L भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। 1.2 करोड़ से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, बट गाड़ी के बारे में और कंपनी के आगे के क्या है प्लान जानने के लिए चलते हैं सीधे मिस्टर बलबीर ढिल्लन हमारे साथ, हु इज़ द हेड ऑफ ऑडी इंडिया, जुड़ रहे हैं। मिस्टर ढिल्लन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड द लवली कार इज़ बिहाइंड अस। फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एज वी नो, एंड दिस इज़ दी ऑलवेज दैट यू सेड कि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में इंडियन कंज्यूमर के लिए राइट फिट है। तो सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जैसा आपने बोला कि हमारी फ्लैगशिप गाड़ी है और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लॉन्ग व्हील बेस्ड गाड़ी है, और इस सेगमेंट के जो कस्टमर हैं मोस्टली शोफर ड्रिवन होते हैं, एंड यू कैन बिलीव दैट द लेग स्पेस इन दिस कार इज़ द बेस्ट। करेक्ट। एंड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़, सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बात जो मुझे पर्सनली लगती है कि हर एक ऑडी A8L को हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम अपने ख़रीदारों को ये चॉइस देते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन करें। कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत फोकस है, बहुत सारे अब कंपनीज फुल बिग इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रहे हैं विद बिग रेंज, योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। तो आपके क्या प्लान्स हैं? आपने 5 ऑलरेडी आपने कहा शोकेस किया है, लॉन्च किया है, बट किस तरीके का रिसेप्शन अब तक मिला है और कब हम उसको वो मेन स्ट्रीम में देख पाएंगे? पहली बात तो जो अभी तक जो हमें रिस्पांस कस्टमर्स का मिला है बहुत ही पॉजिटिव। इनफैक्ट जो भी गाड़ियाँ आज हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं हर महीने, वो ऑलरेडी बिकी हुई होती हैं, सो दे आर कमिंग एंड गेटिंग डिलीवर्ड। सो दैट इज़ द रिस्पांस दैट वी गॉट। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आज हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि सब तरफ से उसको पुश मिल रहा है, हाँ। चाहे गवर्नमेंट पुश कर रही है, चाहे प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, चार्जिंग कंपनीज कर रही हैं, या टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब जगह से उसको पॉजिटिव मूवमेंट मिला। सो उस वजह से एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। हमने एज यू सेड 5 मॉडल लॉन्च किए अभी, तो इस साल हम 5 मॉडल ही रखेंगे, बिकॉज ये पहला साल है जब हम पाँचों गाड़ियाँ इस साल पूरा बेचेंगे। बट जैसा आपको पता है कि ऑडी ग्लोबली 20 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाला है 2025 तक, तो आई एम श्योर सम ऑफ दीज मॉडल विल ऑल्सो मेक इन टू इंडिया।
एंड मे बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम ऑलरेडी आंसरिंग कि कई बार पूछा जाता है कि हम इनको लोकली कब बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा अभी हमारी स्टडी जारी है। सही वक्त पे जब हम एक थ्रेशोल्ड वॉल्यूम पर पहुंच पाएंगे तो हम भी हेडक्वार्टर को कन्विंस कर पाएंगे कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि हम लोकली वो भी बना पाएं। बट इट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ when we will do it, it's not if we will do it. So okay, that's so how when it is. you will do it, which means definitely it's a Some plan point on the cards. All right, बहुत धन्यवाद. Thank you so Always much. a pleasure, Balbir, speaking. Pleasure with is you. mine. Thank you. Well, the fourth generation all new Hyundai Tucson finally भारत में unveil हो गई है. इसका formal launch when you talk about the price that will happen on the 4th of August. Well, गाड़ी की बारे में अगर हम बात करें तो ये of course is a high-end SUV in the sense that it is priced or likely to be priced around 30 lakh rupees. That's the sense we get. Overall looks, dimensions as you see, ये global markets में of course पिछले साल launch हुई थी, but India में it's making an entry now. Look quite promising. आप देख सकते हैं the way it's now designed. It's looking bolder, wider, smarter, good road presence with nice cuts and very futuristic looking, as you can see. That's about the exteriors. Interior में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे interesting changes लाए हैं, and most importantly connectivity, features, technology, खास ध्यान Hyundai का always इस a particular space में होता है. They take the lead and really this is showing in this car as well. You know Hyundai already market leader है in the SUV space and this is only going to add to their kitty. कंपनी को उम्मीद और भरोसा है that will do well in terms of the engine specification. यहाँ पर both diesel and petrol में available होगी. 2-liter diesel engine which is mated to a 8-speed automatic transmission और कंपनी का कहना है that's the segment most powerful diesel engine that you can get, strong power that you get out of it. For petrol it is this 2-liter petrol engine that is mated to a 6-speed automatic transmission. Automatic version में ही available है और ये गाड़ी 4th August को इसकी प्राइसिंग अनाउंस होगी. बुकिंग्स अब से शुरू हो जाएंगी. बहुत इंटरेस्टिंग है. 29 सेगमेंट फर्स्ट इन फीचर्स एंड बेस्ट इन क्लास फीचर्स कंपनी का कहना है इसमें है एंड सेफ्टी पर खास ध्यान रखा गया है एंड दैट इज़ समथिंग कंपनी सेइंग दैट विल पुल पीपल टू बाय दिस कार. प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW मोटरराड इंडिया ने अपनी नई BMW G310 RR को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी की ये फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 2.85 लाख रुपीस रखी है. कंपनी ने इस बाइक को 2 मॉडल के साथ उतारा है जिसमें BMW G310 RR स्टैंडर्ड और BMW G310 RR स्टाइल स्पोर्ट्स वेरिएंट शामिल है. इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में TVS Apache RR 310 में इस्तेमाल हुए 313cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टर इंजन का इस्तेमाल किया गया है. ये इंजन 33.5 bhp की पावर और 27.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इतना ही नहीं बल्कि इस बाइक को TVS Apache RR 310 के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है जिसकी वजह से लुक्स के मामले में ये बाइक Apache RR 310 जैसी ही दिखाई देती है. हालांकि ग्राफिक्स डिजाइन और व्हील्स के डिजाइन में इस बाइक में मामूली बदलाव किए गए हैं जो कि इस बाइक को Apache RR 310 से अलग बनाती है. ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही. आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे. मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjn. यहाँ पर आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेज सकते हैं और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें भी एक्सेस कर सकते हैं. तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए. 2-व्हीलर पर हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए और जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं. जान है तो जहान है. जय हिंद.